था कि बजट में अग्निवीरों के लिए 1 रुपया भी नहीं है और आप सेना का गुणगान कर रहे हैं। इसमें कोई तहमत नहीं कि हमारे देश की सेना बहुत बहादुर और काबिल है, परंतु हमारा प्रश्न अग्निवीरों के संबंधित उनके हित के लिए था। माननीय सदस्य, लगता है आपने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना। मैं पुनः दोहराता हूँ, मैंने कहा था कि जब अध्यक्ष महोदय का आदेश आएगा तब मैं अपना बयान देने को तैयार हूँ। आदेश है। महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि बजट में उन्हें अग्निवीरों के लिए 1 रुपया तक नहीं दिखाई दिया। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने बजट देखा ही नहीं। मैं बताना चाहता हूँ स्पीकर मैडम, केंद्रीय बजट 2024-25 में अग्निपथ योजना के लिए कुल 5,980 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। याद रखें, अग्निवीरों को 48 लाख रुपए तक का लाइफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जा रहा है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 103 from Ayush Pandey. Honorable Speaker, ma'am, in recent times, a lot of instability has been seen in Bangladesh, including rights and communal violence. The Bangladeshi Prime Minister, Sheikh Hasina, has resigned from her post and seek refuge in India, which this government is ready providing. My question is that, is the government considered the beginning of political relations with Bangladesh, considering that many of our neighbors are already in alliances with historical enemies before providing refuge to us? Honorable Minister of Foreign Affairs, please. Honorable Speaker, madam, the government of India has always prioritized international stability and humanitarian principles in its foreign policy. It is easy to former Bangladeshi Prime Minister Hasina was leading life. With our long-standing tradition of offering support to those in need, especially when necessity is direct, while we are aware of the complex geopolitical dynamics in the region, our relationship with Bangladesh is built on a foundation of shared history, culture and economic ties that go beyond any single event. We are actively engaged in diplomatic efforts to ensure that our support for Sheikh Hasina does not lead to a deterioration of relations with Bangladesh or other neighboring countries. Our focus remains on promoting peace and stability in the region while upholding our commitments to international norms and humanitarian values. Thank you. Question number 104 from Prashur Raman. जब तक जल सुरक्षित है तब तक जल सुरक्षित है। Save water and water will save you. It is widely recognized today that water plays a crucial role in human life. Water is the most vital resource for survival on Earth, and it is important to note that only 1.2% of planet water is suitable for drinking. Numerous awareness programs have been implemented across the country to provide water conservation. However, despite this effort, there has been a little impact on the issue of water pollution. Therefore, Speaker Madam, I would like to ask, will the Minister of Environment, Forest and Climate Change provide a detailed explanation of how the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024 is expected to impact the society, particularly in terms of public health, environmental protection and the rights of citizens to a clean and safe water supply. Furthermore, what measures are being put in place to ensure the legalization of minor offences does not lead to harm to our water body? Concerned Minister, please. Thank you for the question. The Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024 is a significant step towards enhancing the governance framework for water pollution. Control while ensuring that the right of citizens to a clean and water supply are upheld. Firstly, the bill aims to legislate minor offences related to water pollution which often lead to unnecessary harassment of business and citizens for technical or procedural defaults that do not cause significant harm to the environment or public health by replacing imprisonment with monetary penalties for such minor infringements. We are fostering an environmental accomplice rather than fear, which is essential for promoting responsible practices among industries and individuals. Secondly, the bill empowers the central government to issue guidelines regarding the grant,
refusal or the cancellation of consent for industrial operation. This will ensure that all industrial activities are subject to stringent environmental assessment, thereby protecting our water bodies from potential pollution. In conclusion, the bill is designed to strike between regulatory oversight and the facilitation of business operations, ultimately leading to a healthy environment and a society. We are committed to ensuring that the implementation of this bill will not compromise by the public health or any environmental integrity, and we will continuously monitor its impact to make necessary adjustments as required. Question number 105 from Mr. Kumari. माननीय स्पीकर महोदय, सीबीआई द्वारा जारी की गई रिपोर्ट का कहना है कि भारत के साल 2024 में भ्रष्टाचार बढ़ा है। इस बार भारत ने 93 स्थान हासिल किया है, जबकि साल 2023 में 85 था। इस बात से यह पता चलता है कि भारत सरकार द्वारा किए गए फैसले का कोई असर नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूँ स्पीकर महोदय, क्या ये सरकार द्वारा लिए गए भ्रष्टाचार को रोकने के तरीके का परिणाम है? आदरणीय स्पीकर मैडम, आपके द्वारा मैं अपने विपक्षी को बताना चाहूंगी कि डेटा के अनुसार 2024 में भ्रष्टाचार 85%, 2016 में 76% और 2017 में 79% और 2018 में 78%, यानी कि भ्रष्टाचार घटा। राजवीर मंत्री साहिबा, यह हमारे सवाल का जवाब नहीं हुआ। हमारे सवाल का किसी एक को दो ना भाई जो छाता पकड़े थोड़ा सा। सारे फैसले सही थे, अगर सही थे तो उनका असर क्यों नहीं दिख रहा है? ठीक है, यह सही है कि इसमें हमारा भ्रष्टाचार बढ़ा है। भारत ने 93 स्थान हासिल किया है, जो कि 2023 के मामले ज्यादा है। परंतु भारत के विभिन्न विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं। वह यह है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के लिए घूस देने वाले और घूस लेने वाले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी की तरह ध्यान से सुनिएगा। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के लिए घूस देने वाले और घूस लेने वाले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, अथवा टैक्स ना भरने वाले पर, टैक्सेशन की जमाखोरी करने वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 106 from स्वस्ति कुमारी। अध्यक्ष महोदय, भारत में 3 वर्ग स्पष्ट रूप से दिखते हैं। पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा गरीब डिपार्टमेंट, छोटे दुकानदार। टैक्स भी सीधी तरह से कॉर्पोरेट टैक्स पूंजीपति भरते हैं। जीएसटी का ज्यादातर हिस्सा लोअर और लोअर मिडिल क्लास के हाथ से आता है और इनकम टैक्स का ज्यादातर हिस्सा मिडिल क्लास के हाथ। एक सच यह भी है कि देश की कुल संपत्ति का 80% हिस्सा केवल 1% पूंजीपति वर्ग के हाथ में से केंद्रित है। ऐसी स्थिति में यह कहां तक सही है कि जीएसटी की उच्चतम दर 28%, इनकम टैक्स की उच्चतम दर 30%, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स की उच्चतम दर केवल 25% है। भारत शायद विश्व का इकलौता ऐसा देश होगा जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स की दर इनकम टैक्स की दर से भी कम है। स्पीकर मैडम, इस सरकार की नीतियां मिडिल क्लास का पैसा सोचकर अपने अरबपति मालिकों के पास निचोड़ दे रही है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास पूरे देश का बोझ अपने कंधों पर जोड़ रहा है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन गरीबी रेखा होने की वही है। ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष बहाना बनाता है। पकड़ दो छातों को। जो हम जाने वाली तो हमारे यह कैटेगरी है। अच्छा आंदोलन वर्तमान बजट में प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रति वर्ष 1 करोड़ लोगों को सोलर पावर पर बिजली बनाने और उसके लिए हमारी फसल सब्सिडी देने की घोषणा की है। सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका सच ये है कि सारे आगे इसे कवर कर दो ऐसे पानी नहीं जाना। सब्सिडी की सारी रकम मुझे लगभग 50,000 हो सकती है, केवल उसी कंपनी के मालिक के पास है। स्पीकर मैडम, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि यदि ये मालिक कटहल की खेती करने का निश्चय लेते हैं तो तुरंत ही सारे सरकार
बजट में मिडिल क्लास स्थिति सुधारने के लिए क्या क्या प्रोग्राम बनाए? हम जाएंगे तो कैमरा वो चीज चलेगा। Honorable Speaker Madam, through you I would like to thank the honorable members for their insightful observation and concern about the middle class, who truly form the backbone of our economy. I am glad to share how the government is actively working to support and uplift this vital sector. स्पीकर महोदय, आपके द्वारा मैं अपने विपक्षी नेता को यह बताना चाहूंगी कि भारत देश में वर्ग के अनुसार से टैक्स लिया ही नहीं जाता। मैं बता दूं, दो प्रकार के टैक्स होते हैं, पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी। जीएसटी हर एक सामान के लिए फिक्स है, चाहे वह अमीर है या गरीब। जैसा उदाहरण के साथ मैं बता दूं, प्रिंटेड सामान के लिए 18% जीएसटी है, कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग यानी मेडिसिन के लिए 5% और वहीं एसी फ्रिज के लिए 28%। नेता प्रतिपक्ष जो कह रही है कि मिडिल क्लास इनकम टैक्स का सारा खा चुकाती है, तो मैं उन्हें यह याद दिला दूं कि भारत में अलग अलग आय के लिए अलग अलग टैक्स लिया जाता है। जैसे 5 से 7 लाख आय के लिए 5% टैक्स है, 7.5 से 15 लाख के लिए 10% और 15 लाख से ज्यादा आय वाले लोगों के लिए 30% टैक्स है। जहां इन्होंने सौर उपकरण का बात किया है, इस सारे उपकरण केवल 1-2 कंपनी से खरीदे जाएंगे, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि महोदय आप इन चीजों की जांच कीजिए। जब सब्सिडी लाई जाएगी तो आप उपकरणों की जांच कीजिएगा, क्या यह सच में उन्हीं कंपनियों से खरीदे गए हैं? आप कुछ जाने समझे ऐसा नहीं बोल सकते। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों तक मुफ्त बिजली पहुंचाने का लक्ष्य जो रखा गया है, महोदय सोलर पावर से मुफ्त बिजली मध्यम वर्ग के लोगों तक ही पहुंचेगी। ये जो कह रही है कि सारे उपकरण सरकार पूंजीपतियों से ही खरीदेगी, तो महोदय सरकार उपकरण पूंजीपतियों से नहीं खरीदेगी तो और कहां से? अगर सरकार पूंजीपतियों से खरीदेगी सारे उपकरण, तो महोदय आप केवल 1-2 कंपनियां ही क्यों कर रही हैं? क्या यह जरूरी है कि सरकार सभी कंपनियों से खरीदेगी? ऐसा सबसे लेकर क्यों चल रही है? इन्होंने कहा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर। तो महोदय आप अपनी जानकारी को बढ़ाइए। अगर आपने इस साल का बजट अच्छे से पढ़ा होता तो आपको रियलिटी चेक मिलता। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों अपने मत पर पिछले 9 वर्षों के दौरान 24.82 करोड़ भारतीय विभिन्न प्रकार की गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात 2014 में 11.28% हो गया है। नीति आयोग के अनुसार गरीबों की संख्या में गिरावट आ रही है, तो आप कैसे कह सकती हैं कि गरीब और गरीब हो रहे हैं? इन्होंने जो गठन में बात किया है, तो मैं बता दूं, हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, यहाँ जो सरकार राज करती है उसमें बड़ाई भी होती है जब वो अच्छे काम करते हैं और विरोध भी। जैसे CAAR कश्मीर से 370 हटा, कई लोग थे जो उसके लिए प्रशंसा किए और यही वो विपक्षी नेता थे जो उसके लिए खड़ी कोठी सुनाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार के सारे पे सब चलता है। यही आना तुरंत। माननीय स्पीकर महोदय, भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ट्रांसपोर्ट का माध्यम है रेलवे। डेटा के अनुसार एक दिन में कुल 24 मिलियन यात्री रेल से यात्रा करते हैं, परंतु अब यह संख्या घट रही है, जिसका प्रमुख कारण है ट्रेन एक्सीडेंट की बढ़ती संख्या। दरभंगा मैसूर ट्रेन कोलिजन, ट्रेन डिलेज एट बिहार, ट्रेन एक्सीडेंट जैसी तमाम खबरें सुनने के बाद लोग ट्रेन से यात्रा क्यों करना चाहेंगे? माननीय स्पीकर महोदय, इस वर्ष कुल 293 लोगों की मृत्यु हो गई है और 900 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। माननीय स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार सिर्फ सुपर फास्ट ट्रेन लाना चाहती है या फिर यह सरकार जनता की सुरक्षा से